Dear students, I am Chauhan and today I am going to give you some formats and some examples of notice and letter to editor, etc. or report writing, whatever it is. So this is a format for writing notice, and notice should be written within word limit, that is about 50 words, including address also. Sometimes address is given in this question that it should be included or excluded. If the word included is given, including the word limit is 50, including address, then you should count from the address also if there is some address. Alright, let me give you this format. Name of the school or firm or organization will be written here. Then word notice, and you can give appropriate heading by reading the question of that notice. If you read it deeply, you will find out the heading also. And then date will be written here, space for writing information. Now this is the body of that notice. You will write here, and then you will put your signature, name in block letters, then designation as mentioned in the question. Sometimes designation is also mentioned. So in report writing, I'll give you examples later on. Heading, title of the report as shown in the question, reporter's name, class, roll number. Opening paragraph giving briefly about the incident, event, accident, also telling about the date, place, etc. What happened, when it happened, and where it happened, and how it happened. All the things will be given in the opening paragraph. So opening paragraph contains information about these things in a very brief. Incident or event or accident. It may be accident also. It may be any event. Telling about the date, place, etc. Right? You will write date in the beginning, place also, and what happened and when, where you are to answer. Keep these questions in mind while writing the opening paragraph. Then main part of the report will come, and there are 2 or 3 paragraphs in this part of the report. You may form 2 or 3 paragraphs. If the report is about a trip or a tour, explain the main activities you did along with your friends. Sometimes you are to write about the report about the tour or trips to a hill station. Then you will write all the main activities you did along with your friends, how you enjoyed the scenery and other things there. You are to imagine the same experiences and write them here in your report. You are to visualize all the activities. If you didn't go any hill station, if you never went to any hill station, you don't know about then you must know about such information. You may visualize that once you went to hill station and you saw those things. You can imagine the things if you didn't do that activity personally. You are to imagine the same experiences and write them here in your report. If you have not experienced such things, then you are to imagine such experiences. In your imagination, you can visualize those things if you haven't experienced those. In the last paragraph, you will conclude your report telling about, if you are writing about a tour, you will tell how it was a success and how you enjoyed the trip. If you are writing about a tour. If you are writing about a function, you will write about the last item and vote of thanks and how the audience enjoyed it. If you are telling about the function. Let me explain in Hindi also these things from the very beginning. नेम ऑफ स्कूल फर्म ऑर्गेनाइजेशन नोटिस के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको. अप्रोप्रिएट हेडिंग दोगे आप ये क्वेश्चन में से निकाल के. फर्म का नाम, स्कूल का नाम, ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो सकता है कोई भी. डेट आ गई, स्पेस यहाँ पे आप सारा मैटर लिखोगे
और सिग्नेचर करोगे, नाम आपका ब्लॉक लेटर्स में होगा और नोटिस में डेजिग्नेशन होगा तो वो मेंशन करोगे यहाँ पे। और कुल मिला के 50 शब्द होने चाहिए। और फिर बॉक्स बनाओगे, रेक्टेंगल बाद में बनाओ तो अच्छा है, अदरवाइज आपको वर्ड लिमिट में दिक्कत आएगी। ये बॉक्स आप चारों तरफ रेक्टेंगल बना दोगे। रिपोर्ट राइटिंग, हेडिंग टाइटल ऑफ द रिपोर्ट आएगा एज शोन इन द क्वेश्चन, रिपोर्टर्स नेम आएगा, क्लास, रोल नंबर, और ओपनिंग पैराग्राफ में आप थोड़ा सा जानकारी दोगे इंसिडेंट के बारे में, एक्सीडेंट भी हो सकता है वो, टेलिंग अबाउट द डेट, प्लेस एटसेट्रा, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ये चीज़ें आप मेंशन करोगे। मेन पार्ट ऑफ द रिपोर्ट में देयर आर 2 और 3 पैराग्राफ आप बना सकते हो, यहाँ पे 2 या 3 पैराग्राफ। इफ द रिपोर्ट, यदि रिपोर्ट आपकी ट्रिप के बारे में या टूर के बारे में है तो एक्सप्लेन, अपनी एक्टिविटीज़ को एक्सप्लेन करोगे, क्या क्या किया आपने, किसके साथ आप गए थे, फ्रेंड्स के साथ क्या क्या एक्टिविटीज़ की, हाउ यू एंजॉयड द सीनरी, कैसे वहाँ की सीनरी आपने एंजॉय की। सपोज करो हिल स्टेशन था तो आपने स्नोफॉल देखा या कुछ और एक्टिविटीज़ आप बताओगे वहाँ पे। और यू आर टू इमेजिन द सेम एक्सपीरियंसेस, अगर आप कभी नहीं गए तो आप उसी तरह के एक्सपीरियंस को इमेजिन करोगे जो आप इतना तो कहीं पढ़ ही सकते हो, सुन सकते हो कि पहाड़ों पे क्या होता है, कैसी क्या क्या आप इमेजिन कर सकते हो, वो सारी बातें आप विजुअलाइज करोगे अपने दिमाग में। आखिरी पैराग्राफ में आप कंक्लूड करोगे, अगर रिपोर्ट टूर के बारे में ही है तो आप किस तरह से उसका प्रभाव आपके दिमाग पे पड़ा, आप कितने खुश थे, कितने सफल थी वो आपका टूर या ट्रिप, हाउ यू एंजॉयड द ट्रिप, किस तरह से आपने एंजॉय किया। अगर आप किसी फंक्शन के बारे में लिख रहे हो, स्कूल में कोई फंक्शन हुआ है आपके, तो आप लास्ट आइटम क्या थी, फिर उसके बाद वोट ऑफ थैंक्स हुए और किस तरह से ऑडियंस ने सारे फंक्शन को एंजॉय किया था। If the report is about a function, then you are to write about the main activities. बीच में आप मेन एक्टिविटीज़ बताओगे, कैसे फंक्शन शुरू हुआ, एनुअल डे फंक्शन हो सकता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी का हो सकता है, how the function started, who was the chief guest, how the function progressed from one activity to the last one. You can drop the unimportant detail, जो ज़रूरी नहीं है डिटेल, आप उसको ड्रॉप कर सकते हो। और अपने दिमाग में वर्ड लिमिट ज़रूर रखना कि कितनी वर्ड लिमिट उसकी रहेगी। लेटर टू एडिटर, हाउस नंबर, अपना एड्रेस आएगा पहले आपका, और घर का नंबर से शुरू होता है, जैसे 444 कॉमा, फिर मोहल्ले का नाम, जो स्टेट का नाम है वो आप दोगे, नई आबादी या कुछ भी, सिटी, टाउन, विलेज जो भी हो, डिस्ट्रिक्ट लिखोगे, यहाँ स्पेस छोड़ोगे, फिर डेटा की स्पेस छोड़ के आपको आगे बढ़ना है ताकि वो क्लियर रहे, पहुँच ना हो जाए, श्रिंक ना हो जाए सब्जेक्ट मैटर। स्पेस दोगे पढ़ा भी जाएगा वो। द एडिटर, यहाँ अखबार का नाम आएगा और सिटी आ गया, स्पेस दे दी आपने क्लियर करने के लिए, सर, डियर सर और मैडम। सब्जेक्ट यहाँ भरोगे, प्रॉब्लम जो क्वेश्चन में है वही पिग मैनेस के बारे में है या नॉइस पोल्यूशन के बारे में है, वो यहाँ आप डालोगे क्वेश्चन पेपर से ही निकाल के। फर्स्ट पैराग्राफ, यू विल राइट अबाउट द प्रॉब्लम एंड यूजुअल सेंटेंसेस टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द पब्लिक। और जो लेटर टू एडिटर शुरू होते हैं वो ख़ास लैंग्वेज होती है, वो आकर्षित करती है, आम पब्लिक का ध्यान खींचती है, वही लैंग्वेज आप याद कर सकते हो। बॉडी ऑफ द लेटर में इंक्लूड 2 or 3 पैसेजेस एलेबरेटिंग द इशू और प्रॉब्लम। तो 2-3 पैसेज में उस इशू को, उस प्रॉब्लम को इलेबोरेट करोगे, विस्तृत तरीके से बताओगे। हाउ द प्रॉब्लम हैज़ बिकम सीरियस, प्रॉब्लम कितनी गंभीर है, अफेक्टिंग द सोसाइटी इन जनरल, सोसाइटी को कैसे प्रभावित कर रही है, इफेक्ट्स, प्रभाव क्या, सजेशन क्या है, इम्प्रूव, जिससे आप सिचुएशन को इम्प्रूव कर सकते हो। क्लीनलीनेस, ड्राइव के बारे में हो सकती है कि लोग कैसे, समस्या नहीं है ये, आप ड्राइव मूवमेंट के बारे में लिख सकते हो कि लोग कितना सहयोग दे रहे हैं और क्या करना है इस मूवमेंट को सफल बनाने के लिए, या कोई और हो सकता है। इन लास्ट स्मॉल पैसेज यू मे टॉक अबाउट योर होप, अपनी आशा के बारे में, अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ योर राइटअप, जो आपने लिखा उसका प्रभाव आम जनता पे कैसा रहेगा,
उसके बारे में लिखोगे, अपना नाम लिख दोगे। ऐसे ही लेटर टू एडिटर्स मार्क लगेगा। एग्जाम्पल है नोट्स के, फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एग्जाम्पल रिपोर्ट के भी दूंगा आपको, लेटर के, जॉब लेटर और दूसरे लेटर टू एडिटर के बारे में भी आपको ये देता रहूँगा मैं आपको। और दूसरे लेटर भी जो रिफ्यूज़ल और उसके होते हैं फॉर्मल इनफॉर्मल, कोशिश करूँगा उनको भी बीच में निकालूंगा आपके लिए वीडियो। तो इसमें डेट, जैसे ये आपने डेट दी, ये आप स्कूल का नाम आ गया, नोटिस लिखा, यहीं आपने टैलेंट हंट प्रोग्राम निकाल लिया क्वेश्चन में से। एंट्रीज फॉर ए टैलेंट हंट प्रोग्राम टू बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन September 7, 2014, या कोई भी ईयर आ सकता है, इन दी ऑडिटोरियम ऑफ द स्कूल आर बीइंग इनवाइटेड, इनवाइट की जा रही हैं। ये पैसिव में चलता है आमतौर पे, सारा एक्टिव वॉइस नहीं होता। एंट्रीज मांगी जा रही है, इनवाइट की जा रही हैं टैलेंट हंट के लिए, किस डेट को, कहाँ पे, ऑडिटोरियम। द स्टूडेंट्स में शो देयर टैलेंट्स इन मोनो एक्टिंग। अब ये आइटम्स का जिक्र कर दो कि स्टूडेंट किस किस आइटम में अपने टैलेंट को शो कर सकते हैं। मोनो एक्टिंग, माइम शो में, स्पीच में, सिंगिंग एंड पोएम रेसिटेशन। वन स्टूडेंट कैन टेक पार्ट इन वन आइटम ओनली। ये कंडीशन है कि एक स्टूडेंट एक ही आइटम में हिस्सा ले सकता है। द क्लोजिंग डेट इज September 5, 2017 कर सकते हैं, 17 शुरू हो चुका है। ऑल दी स्टूडेंट्स विल रिमेन प्रेजेंट इन द कॉन्फ्रेंस हॉल। सारे विद्यार्थी कॉन्फ्रेंस हॉल में होंगे। एंड फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग प्रोग्राम, शॉर्ट लिस्टिंग भी होगा प्रोग्राम का ऑन September 6 को, संडे को। सबमिट योर ड्यूली फिल्ड इन फॉर्म टू दी अंडरसाइंड। अपने अपने फॉर्म पूरी तरह से उचित रूप से भर के अंडरसाइंड को दीजिए। जिसके सिग्नेचर ये हैं वो अंडरसाइंड होता है। रोशन कल्चरल सेक्रेटरी है आपका स्कूल कल्चरल एसोसिएशन का, तो ये रोशन की तरफ से नोटिस निकला। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। एक बार फिर देख लीजिए। आपने स्कूल का नाम लिखा, नोटिस, टैलेंट हंट प्रोग्राम, डेट दी, एंट्रीज के बारे में जिक्र किया आपने और आइटम्स का जिक्र किया और कंडीशन बताई, वन स्टूडेंट कैन टेक पार्ट इन वन आइटम। क्लोजिंग डेट बता दिया आपने और September 6 को शॉर्ट लिस्टिंग प्रोग्राम का बता दिया और अपने फॉर्म भर के दीजिए रोशन को। क्वेश्चन है नोटिस का ही है शायद ये। Assume yourself as आशिमा आशुतोष ऑफ क्लास 12। 12वीं क्लास की छात्र या छात्रा। आशिमा लड़की हो सकती है, आशुतोष हो सकता है, आशिम हो सकता है, कोई भी नाम। आमतौर पे पेपरों में ऐसे ही आते हैं, क्वेश्चन पेपर में इस तरह का नाम होता है। आप अगर लड़का है तो लड़के का नाम, लड़की का नाम, अगर लड़की का नाम एज्यूम करेगी और लड़का लड़के का नाम एज्यूम करेगा। स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ द स्कूल, स्पोर्ट्स क्लब के स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैं आप। अनाउंस इन ए नोटिस, एक नोटिस में अनाउंस करना है आपको, दैट द एनुअल स्पोर्ट्स मीट ऑफ द स्कूल विल बी ऑर्गेनाइज्ड फॉर 3 days। 3 दिन के लिए स्कूल स्पोर्ट्स मीट चलेगी आपकी। डेट दे दी आपने Feb 2 से 4 तक। टेल दी स्टूडेंट्स टू मीट फिजिकल इंस्ट्रक्टर मिस्टर सोनी। और स्टूडेंट्स को ये बताना है कि मिस्टर सोनी को मिले, फिजिकल इंस्ट्रक्टर को। एंड डिसाइड अबाउट द इवेंट यू आर गोइंग टू पार्टिसिपेट। जिस इवेंट में आप पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं तो उनसे मिलकर डिसाइड कीजिए। मिस्टर सोनी विल बी अवेलेबल ओनली इन 0 पीरियड। और मिस्टर सोनी आपको 0 पीरियड में अवेलेबल रहेंगे। The local MLA will inaugurate the function on Feb 2। और जो लोकल MLA हैं वो फंक्शन को इनागुरेट करेंगे, शुरू करेंगे February 2 को 10 बजे, बिल्कुल एंड 10 बजे उसका इनागुरेशन होगा फंक्शन का। तो ये क्वेश्चन में से काफ़ी कुछ पता लग जाता है, आप ध्यान से पढ़ें, जानें। स्कूल का नाम आपने दे दिया एएस मॉडर्न स्कूल, एएस एंग्लो संस्कृत मॉडर्न स्कूल। जगह का नाम आप लिखते नहीं हैं एग्जाम में, लिखा नहीं जाता, ABC लिख दीजिए। ज़रूरी नहीं है खन्ना का स्कूल हो या लुधियाना का हो, आप कुछ नहीं लिखोगे, ABC। नोटिस अबाउट एनुअल स्पोर्ट्स मीट, January 31, यहाँ ईयर मेंशन किया। All the students are informed that the annual sports meet is going to be organized on Feb 2, 3 and 4।
सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है कि एनुअल स्पोर्ट्स मीट ऑर्गेनाइज की जा रही है 2, 3, 4 फेब को। द स्टूडेंट्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दी मीट, जो स्टूडेंट्स मीट में हिस्सा लेना चाह रहे हैं, मैं गिव देयर नेम्स टू मिस्टर सोनी। मिस्टर सोनी को अपने नाम दे सकते हैं फिजिकल इंस्ट्रक्टर को, टुमारो कल इन द 0 पीरियड, एंड आल्सो डिसाइड अबाउट द इवेंट, और अपनी इवेंट के बारे में भी डिसाइड कर सकते हैं विच यू आर गोइंग टू टेक पार्ट इन। जिस इवेंट में आप हिस्सा लेना चाह रहे हैं उसके बारे में डिसाइड कर लो। द लोकल MLA विल इनागुरेट द फंक्शन ऑन Feb 2, और Feb 2 को लोकल MLA इनागुरेट करेंगे फंक्शन का। एंश्योर योर प्रेजेंस ऑन टाइम, और अपनी प्रेजेंस ऑन टाइम इंश्योर करें, मीन्स 10 बजे से पहले पहले आप पहुंच जाएं। सिग्नेचर त्रिगुण नाम है स्पोर्ट्स सेक्रेटरी का, स्कूल स्पोर्ट्स क्लब। तो इस तरह से आप नोटिस बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, अज्यूम योरसेल्फ एज आराध्या या अरुण of class 12. The organizing secretary of school sports club announced that an inter-house debate competition is going to sports club। आप यहाँ पे cultural club कर लेना, by mistake हो गया। cultural club के आप secretary हैं, organizing secretary of the school cultural club। आपको अनाउंस करना है इंटर-हाउस डिबेट कंपटीशन, जो कि कमिंग सैटरडे को आपके ऑडिटोरियम में होने जा रहा है, स्कूल ऑडिटोरियम में। आल्सो राइट इन द नोटिस अदर रेलेवेंट डिटेल्स अबाउट द फंक्शन, और जो भी रेलेवेंट है, उचित है बातें, वो भी लिखनी है आपको डिटेल। ST पब्लिक स्कूल ABC, ये जगह का नाम आ गया। नोटिस इंटर हाउस डिबेट कंपटीशन September 18 year, the students of all the 4 houses, इंटर हाउस कंपटीशन है ये, सारे चारों हाउसेज में, आर इन्फॉर्म दैट एन इंटर हाउस डिबेट कंपटीशन ऑन द टॉपिक हाउ मच फ्रीडम शुड बी गिवन टू द प्रेस। प्रेस को कितनी फ्रीडम मिलनी चाहिए उसके ऊपर है। इज गोइंग टू बी हेल्ड इन द ऑडिटोरियम एट 10 AM, 10 बजे होगी शार्प, बिल्कुल 10 बजे शनिवार को डिबेट होने जा रही है। द प्रीफेक्ट्स ऑफ द स्कूल, या जो आप लिखते हैं, कैप्टन लिखो या जो भी है, आर टोल्ड टू सबमिट द लिस्ट ऑफ द 4 पार्टिसिपेंट्स। जो प्रीफेक्ट हैं हाउसेस के, वो कैप्टन कह लो, आप कुछ भी कह लो, तो 4 पार्टिसिपेंट्स के वो नाम देंगे। ईच हाउस, हर एक हाउस से 4 पार्टिसिपेंट्स आएंगे, आदित्य को देंगे। ये ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है कल्चरल सोसाइटी के। तो इस तरह से नोटिस कोई मुश्किल नहीं होते। आप क्वेश्चन को रीड कीजिए, फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, आप लिख देंगे, इतना दिमाग में मटेरियल होता ही है। तो ये एंड ऑफ द वीडियो 1, और भी कुछ लेके बीच में ऐसे ही समय निकालूंगा और निकालूंगा आपके लिए मटेरियल। तो राइटिंग स्किल भी मायने रखती है, लिटरेचर भी आप लर्न करोगे, और राइटिंग स्किल्स भी उसमें काफ़ी कुछ होता है। राइटिंग स्किल्स में मार्क्स आप अच्छे ले सकते हो, बट अच्छा लिखना आपको स्पेस देके, और बिल्कुल खूबसूरत होना चाहिए। हैंड राइटिंग आपका बिल्कुल प्रेजेंटेबल होनी चाहिए आंसर शीट, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक अलविदा, फिर मिलते हैं। थैंक यू।